गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट। ठीक है। फर्स्ट अपना लिक्विड वेस्ट फ्रॉम हाउसेस। जो हाउस से निकलने वाला जो लिक्विड वेस्ट है वो क्या है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर फ्लो थ्रू द ड्रेन्स ऑफ आवर हाउसेज आफ्टर वी हैव यूज इट. Water is later purified and refined. Water reused. To you know how it is done? The wastewater flowing through the drains in our houses goes into the sewers or the large drains outside our houses. From their sewers or drains, the waste water is taken to the water purification plant. Here the waste water is first separated from the solid waste, then this water is filtered, which help to remove the coarse impurities like dust and soil from the water. Next, this water is treated with chemical like chlorine, which kill the germs of disease there. After this, water is fit to drink, and it is supplied to the houses through pipes. लिक्विड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज. अब फैक्ट्री से भी लिक्विड जो भी वेस्ट होता है वो निकलता है कैसे? फैक्ट्रीज आल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइजनस केमिकल एंड वेस्ट वाटर. दिस लिक्विड वेस्ट इज वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स. सम factories let them flow into river, pond, lake, seas, etc. This not only pollute the water but also cause the deaths of the plant and the animal living in the water. So such waste should be released at scheduled places only. जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो रहता है वो बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हो क्योंकि बहुत जहरीला होता है. पॉइजनस केमिकल के कारण जो हमारा जो वाटर रहता है वो वेस्ट हो जाता है और ये नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में मिलकर ये बहुत हार्मफुल आता है. सोकेज पीट. It is good method for disposal of liquid waste. This method is usually practiced in villages to make soakage peat. Peat. The villagers dig a large deep pit and cover its bottom with gravel, sand, and bricks. This porous bottom soaks and all waste water readily drains from each house of the village, leads to this pit so that wastewater from all houses can flow into it. The mouth of pit should be covered with a stone slab. सोकेज पीट बहुत अच्छा है जो गांव में इसका होता है तरीका यूज़ करते हैं. इसमें एक गड्ढा खोदते हैं, ब्रिक डालते हैं, सैंड डालते हैं और एक गड्ढे को भर दिया जाता है. अब घरों से जितने भी वाटर आते हैं, गंदे पानी जो भी रहते हैं, ड्रेन्स होते हैं, उसे यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है पानी. तो जो भी चीज़ें रहती हैं वो प्योरीफाई होके अब ये वाटर लेवल को हमारे बढ़ाती भी हैं सोकेज पीट से. Recycling and reusing waste. To keep the environment clean, we must practice three: reduce, reuse, and recycle. To reduce means to use a lesser quantity of things so that we produce lesser waste. To reuse means to use recycled things or to find new use for things we would normally throw away. For example, old cloth like bedsheet, curtains, sarees, etc. can be reused to make shopping bags, inner cover for pillows, cushions, etc. Cloth like older discarded shirt, frocks, pants, salwar suit, etc. can be used as duster or mopping cloths. Cardboard, plastic jars, or aluminium can also be this is on the outside and reused as pencil holder of piggy banks. To recycle means, तो आप समझ गए होंगे कि रीयूज़ का मतलब क्या होता है कि हमने कोई चीज़ ऑलरेडी बनी हुई चीज़ को, उसको जब पुरानी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे रीयूज़ करने के लिए या फिर उसे नए तरीके से यूज़ करने के लिए हम कुछ अलग करते हैं. जैसे हम कॉटन साड़ी बना लेते हैं, किस्सा
बेडशीट जो रहते हैं, ओल्ड बेडशीट रहते हैं या कर्टन रहते हैं, साड़ी रहते हैं, उसका यूज़ करने के लिए शॉपिंग बैग बना लेते हैं, इनर कवर या पिलोज कर्शंस बना लेते हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ बना लेते हैं। बॉक्सेस कार्डबोर्ड या प्लास्टिक जार से हम क्या बना लेते हैं, पिग्गी बैंक या पेंसिल होल्डर बना लेते हैं। ओके, तो रीयूज़ का मतलब भी समझ में आ गया होगा। टू साइकिल मीन्स टू पुट द वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस इन factories to give them a new form and shape. Recycled product can be used again. For example, you must have seen your mother selling old newspapers and other waste paper to the junk seller, kabadi wala. What do you think he does with this paper? आप देखे होंगे कि जो रिसाइकल चीज़ है वो हम क्या करते हैं कि उन्हें वेस्ट प्रोडक्ट को, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हम क्या करते हैं, दे देते हैं किसी, जैसे कबाड़ी वाला को दे देते हैं आप। तो वो हमें क्या होता है, कैसे होता है उसका रिसाइकल कैसे होता होगा आपको नहीं पता, लेकिन फैक्ट्रीज़ में इसको रिसाइकल होने के बाद इसे न्यू फॉर्म और न्यू शेप में हमें सामने में मिलता है या दिखाई देता है। ठीक है, आपको पता है कि हम पेपर जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें उसे किधर मतलब सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, या फिर जो भी पेपर रहते हैं, जो ऐसे वेस्ट पेपर रहते हैं, उस कबाड़ी वाले को भी हम सेल कर देते हैं। तो क्या होता होगा आगे, वेल ही सेल दिस जंक टू द पेपर रिसाइकल फैक्ट्री विच मेक्स फ्रेश पेपर आउट ऑफ वेस्ट पेपर। तो अब फैक्ट्रीज़ में से कैसे होता है, पेपर जो रिसाइकल होते हैं वो बन के फ्रेश पेपर बन जाते हैं। द अदर थिंग दैट रिसाइकल इन दिस वे एंड थिंग मेड ऑफ ग्लास, बॉटल, टम्बलर्स, मिरर्स etc. जो ग्लास होता है उससे क्या क्या बन जाते हैं, बॉटल्स, टम्बलर्स एंड मिरर बना लेते हैं। प्लास्टिक से टॉय, बकेट, बास्केट, टब, मग, फ्लावर बॉटल, ग्लास, स्पून, प्लेट्स एक्सेट्रा। एंड मेटल से, ठीक है, मेटल से क्या क्या चीज़ें बनती है, जब हम लोग कबाड़ी वाले को मेटल देते तो आयरन, ब्रॉस, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इनमें से कोई भी चीज़ें रहती हैं उनका भी रिसाइकल हो जाता है। पॉलीथीन इज़ अ मटेरियल दैट कैन नॉट बी रिसाइकल। पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है जिसका क्या रिसाइकल नहीं हो किया जा सकता। वी मस्ट नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, हमें पॉलीथीन बैग्स नहीं यूज़ करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कैरी अ बैग मेड ऑफ पेपर, क्लॉथ एंड और जूट व्हेन वी गो और शॉप टू buy something. Hence we can keep our environment clean by following the 3 R's of reducing, reusing and recycling. तो RS of reducing, following the 3 R's means क्या होता है, reducing, reusing and recycling। क्योंकि R हम 3 टाइप में यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट अपना reducing मतलब फर्स्ट R, 3R मतलब फर्स्ट है reducing, सेकेंड reusing एंड थर्ड है recycling। तो हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। वेल चिल्ड्रन, आई होप दैट यू हैव understand how we can keep our environment clean. You must promise to tell everything you have learned today to your parents, friend, relative and other people you know. We shall meet again in the next class to talk about pollution. So goodbye till then। तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि आज हमने पढ़ी क्लीन इन्वायरमेंट क्लीन, और आप अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स को बताइए कि आखिरकार हम अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे रख सकते हैं या क्या तरीका होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉल्यूशन के बारे में, मतलब प्रदूषण के बारे में। ठीक, ओके। अब हम थोड़ी एक्सरसाइज देख लें। ओके, ये हमारा चैप्टर है। आज हमने क्या चैप्टर पढ़ा है, हमने पढ़ा है क्लीन इन्वायरमेंट। क्लीन इन्वायरमेंट का ये एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शंस, तो ये आप कर लेंगे। ठीक, कभी अगर कुछ डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना 6th क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आंसर की इमेज आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। टिक द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।